میں کھڑا اوکے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you? Fine. Are you fine? Are you okay? اچھا یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ ارکان اسلام. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ارکان. ارکان. کیا ہے؟ ارکان. اچھا یہ بتائیے ارکان جو ہے یہ گرامر میں کیا ہے؟ ارکان گرامر میں کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ رکن کی جمع. رکن کی جمع. کیا بنا؟ رکن کی جمع. ارکان. یہ اسلام کیا ہے؟ دین مذہب. جمع نہیں ہے، اس کا معنی ہے دین مذہب. ٹھیک ہے جی. یہ کن کا مذہب ہے؟ مسلمانوں کا. مسلمانوں کا. کن کا ہے؟ مسلمانوں کا. اچھا ارکان اسلام یعنی جو رکن کی جمع ارکان ہے، یہ اسلام میں کتنے ارکان ہیں؟ 5. شاباش. کتنے ہیں؟ 5. تو ہم لے لیں. بولے یا نماز. نماز پہلا نہیں ہے. زکات. حج. پہلا ہے توحید و رسالت. رسالت. اب یہ توحید و رسالت ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی ہے چیز کہ ہم ثابت کر سکیں یہ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے؟ جی. پہلا کلمہ کسے کسے آتا ہے؟ کیا آواز؟ ہیلو. یہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا نا اس کی طرف آپ نے کیمرہ کرنا ہے. نیچے کر لیں ہینڈز ڈاؤن پلیز. یس جی پڑھیے گا پہلا کلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بیٹھ جی. ایک تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کلمے کے 2 حصے ہیں. کتنے ہیں؟ 2. ایک توحید اور دوسرا رسالت. توحید بتائیے گا ذرا. توحید کہاں ہے؟ ہاں لا الہ الا اللہ. لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. یہ کیا ہو گیا؟ توحید. کیا ہو گیا؟ توحید. اور رسالت کون سا ہوا؟ محمد رسول اللہ. اب پتہ لگ گیا یہ کلمے کے 2 حصے ہیں توحید اور رسالت. یہ اسلام کا پہلا رکن ہوگا. اب چلتے ہیں دوسرے کی جانب. کیا ہوگا؟ نماز. کیا ہو جائے گا؟ نماز ہو گیا. تو دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. کون نام بولے گئے؟ پیچھے کرے جی. جی اسٹارٹ. آپ نمازوں کے نام بولے ذرا. عشاء. جی اسٹینڈ پلیز سٹ ڈاؤن. کون کون سی نمازیں ہیں؟ پہلی نماز عشاء. نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء. شاباش. بیٹھ جائیں. اچھا جی. اب ہم چلتے ہیں تیسرے کی جانب. وہ کیا ہے؟ روزہ. کیا ہو گیا؟ روزہ. اچھا روزے کس مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان کے مہینے. کتنے روزے ہیں؟ 29 یا 30 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30. جیسے اس دفعہ ہمارے 29 ہوئے تھے نا. ہاں جی. تو روزے. روزہ کیا ہوتا ہے؟
किसे कहते हैं रोजा? सुबह से शाम तक खाने पीने से, फजूल गुफ्तगू से बचना, ठीक है, यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। तो ये रोजा हो गया। रोजा का मानी होता है ढाल। क्या होता है? ढाल। और सोम का माना होता है बचना। सोम का माना क्या है? बचना। ये रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? सोम। क्या कहते हैं? सोम। और नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलात। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और इन तौहीद और रसालत को क्या कहते हैं? कलमाए तैयब। कलमाए तैयब। अब चलते हैं तीसरे की। आगे क्या आ गया जी? ज़कात। क्या आ गया? ज़कात क्या होता है? के साल के बाद, ठीक है जी। तो 1 रुपए पे 100 रुपए पे कितनी ज़कात आती है? 2.5 रुपए। क्या आती है? 2.5। इसी तरह सोना चांदी, सोना और चांदी पे सोना 7.5 तोले और चांदी 52.5 तोले, जिसके पास हो उस पर साल बाद ज़कात वाजिब हो जाती है, उसने देना होती है। यानी अपने माल से एक मुकर्रर हिस्सा निकालना होता है जो गरीबों यतीमों में तकसीम किया जाता है। अब आगे आखिरी चीज है हज। क्या है? हज क्या है? हज का मानी है ज़ियारत करना। क्या करना? ज़ियारत करना। अच्छा, ये जो 3 चीजें, तौहीद और रिसालत, ये नमाज, ये रोजा, ये तो हर बंदे पे जीवाना फर्ज है। किस पे? हर बंदे पे। लेकिन ये जो ज़कात और हज है, ये मालदार बंदे पे फर्ज है। किस पे? मालदार। जिसके पास पैसे हो ज़कात देने के लिए और जिसके पास पैसे हो हज करने। हज का मानी क्या बताया मैंने? ज़ियारत। देखना। हम जाके उधर क्या करते हैं? काबा को देखते हैं, मदीना शरीफ में जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनकी हम क्या करते हैं? ज़ियारत। तो इसलिए हज का मानी क्या है? ज़ियारत। क्या है? ज़ियारत। ये किस महीने में होता है हज? इस्लामी महीना बताइए। ज़ुल्हज में। किस में होता है? ज़ुल्हज। हज। ये हज करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मुल्क का नाम बताइए। इस वक्त सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब का पुराना नाम क्या है? सऊदी अरब का पुराना नाम, ये तो खुद इन्होंने रखा था ना, आले सऊद ने। तो इनका एक नाम था पहले, उसका नाम था हज्जाज। क्या था? हज्जाज। इसको कहते थे हज्जाज मुकद्दस। क्या कहते थे? हज्जाज मुकद्दस। तो आपके सामने ये पूरा नक्शा आ गया अरकान इस्लाम का। चले इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। अरकान जमा है रुकन। तो अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तौहीद और रिसालत यानी कलमा तैयबा, नमाज जिसको अरबी में सलात कहते हैं, रोजा जिसको अरबी में सौम कहते हैं, ज़कात और हज। और हज होता है ज़ुल्हज के महीने में। किसमें? सऊदी अरब। इसका पुराना नाम क्या है? हज्जाज मुकद्दस। इस्लाम क्या है? दीन और मजहब है किसका? मुसलमानों का। किनका? मुसलमानों का। ठीक है जी। अच्छा जी, आप पूछ ले सवाल जी। आप खड़े हो जाए। वो चीज बताएं जिसके अंदर तौहीद और रिसालत आती है। पता चलता है किसके अंदर तौहीद और रिसालत है जी। एनीवन जिसके अंदर तौहीद और रिसालत का जिक्र है जी? कलमा तैयब। कलमा तैयब। शाबाश, सुना दे एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। चलो जी, ये हो गया जी मोहम्मद। कलमे का तर्जुमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
लायक नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है। आखिरी का सिया जिसमें लिखे ना मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आखिरी एक और जगह लिखा हुआ है वो कुरान मजीद के अंदर, व खातमुन नबिय्यीन, व खातमुन कि वो नबियों में सबसे आखिर है। ठीक है जी। तो इस तरह दूसरे नबियों के कलमे भी थे, जैसे कलमा था आदम अलैहिस्सलाम का ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सिफीउल्लाह। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। इस तरह ईसा का ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इस तरह को जो है ना वो आते। तो इब्राहिम का हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। आपको कुछ समझ आया? हाँ जी सर। ठीक है, इसी तरह पढ़ते हैं, हाँ जी सर। ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, आइंदा से मैं आपकी ना वीडियो खुद आगे बनाया करूँगा, आप इसी तरह पढ़ते हैं। तो